वेलकम एवरीवन टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय फैक्शन नीट. दिस इज नीलाद्री सर. आज हम देखेंगे द थर्ड एपिसोड ऑफ दिस चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेयर वी विल स्टडी रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. This is a very important topic. Exchange of gas, transport of gas, regulation, disorder. These are the four parts जो अभी इस चैप्टर में हमें करना है. और बाकी the first half of this chapter is already done in the first and second lecture. So let's start with today's lecture. The first topic says the exchange of gas, and here we can see a diagram of alveoli, blood vessel. तो चलिए पहले ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, जो गैसियस एक्सचेंज का मेम्ब्रेन है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं. This structure, this here itself is the alveoli. यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है एक alveoli, और नीचे की तरफ this part is blood capillary. This part is a blood capillary. अभी हमको यहाँ पे क्या करना है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तब ऑक्सीजन अंदर आएगा. This oxygen, how it gets transported from alveoli to blood capillary. During exhalation, जब body tissues they produce carbon dioxide, how this carbon dioxide is transported from blood capillary to alveoli. What we have to study first, transport of oxygen from alveoli to blood capillaries, or transport of CO2 from blood capillaries to alveoli. As soon as we inhale, say this is an oxygen molecule, and here it will get transported into the blood capillaries. In this region it will get transported into the blood capillaries. Now for this transport, as you can see, there are three layers. First it has to cross this layer. Second, there is a mesh up here, we will see about it. This is the first thing, this is the second thing, and lastly the wall of the blood capillaries. This is the third thing. नाउ अगर हम एल्वियोलाई का वॉल देखें, यहाँ पे जो एपिथेलियम है, दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. द वॉल ऑफ एल्वियोलाई, यहाँ पे जो एपिथेलियम देखने को मिलता है, दिस इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. नाउ if you know about animal tissues, simple epithelium means single layer, squamous means flat cells. The epithelium of alveoli and the epithelium of blood vessels is more or less similar. Both of them have simple squamous epithelium. So I can write the same here as well. Blood vessel में भी जो epithelium है, that is also simple squamous epithelium. Now if the simple squamous epithelium is associated with blood vessel, it is also called endothelium. इसको endothelium भी कहा जाता है. Let's revise once again. फर्स्ट जो एल्वियोलाई का एपिथेलियम है, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. जो ब्लड वेसल का एपिथेलियम है, उसका भी नाम क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. और ब्लड वेसल के केस में इसको एंडोथेलियम भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज द मिडिल पार्ट. दिस इज व्हाट वी कॉल द बेसमेंट सब्सटेंस. ये जो बीच का पार्ट है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल, यहाँ पे बीच में यू कैन सी देयर इज ए फ्लूइड फिल्ड. ऑल I will discuss this part. It is actually composed of three parts. First part, second part, third part. There are three parts individually. So this part is called the basement substance. So the diffusion membrane, इसके तीन layers होते हैं. Simple squamous epithelium of alveoli, उसके बाद basement substance, उसके बाद simple squamous epithelium of blood vessels. अब इनके बीच में जाने से पहले you can see यहाँ पे दो तरह के सेल मैंने बनाए हैं. These are the two types of cells. और जो पहला वाला है, इसको तो मैंने लेबल कर लिया सिंपल स्क्वामस. जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, उनको कहा जाता है टाइप 1 सेल्स. और जो मैंने ये येलो कलर के सेल्स बनाए हैं, दे आर कॉल्ड टाइप 2 सेल्स. और दोनों ही टाइप के सेल्स किसके हैं, एल्वियोलाई के. अब मोस्टली द एल्वियोलर एपिथेलियम हैज टाइप 1 सेल्स. दैट इज क्योंकि ये एल्वियोलाई का सेल है, उनका एक नाम दिया जाता है न्यूमोसाइट. बोथ टाइप 1 टाइप 2 दोनों को कहा जाता है न्यूमोसाइट. न्यूमोसाइट का मतलब ही होता है, न्यूमो मीन्स एल्वियोलाई, साइट मीन्स सेल. ये वर्ड आ गया न्यूमो, इट मीन्स एल्वियोलाई, और साइट का मतलब होता है सेल. एल्वियोलाई का सेल है, इसलिए इनको कहा जाता है न्यूमोसाइट्स.
अभी जो दूसरा है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, टाइप 1 का फंक्शन तो हमें पता है कि इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, जो कि नीचे लिखा भी है, दिस इज द टाइप 1 सेल, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। टाइप 2 का फंक्शन है दे सिक्रेट समथिंग कॉल्ड लेसिथिन। नाउ लेसिथिन अगर आपको पता हो कि दिस इज ए फॉस्फोलिपिड, मतलब लिपिड के साथ फॉस्फोरिक एसिड का एक प्रेजेंस होना, PO4 ग्रुप का प्रेजेंस होना। नाउ ये जो लेसिथिन है इट एक्ट एज सर्फेक्टेंट। लेसिथिन एक्ट एज सर्फेक्टेंट। नाउ व्हाट इज ए सर्फेक्टेंट? एक ऐसा सब्सटेंस जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करे, ए सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है इट विल हिंडर और इट विल से रेस्ट्रिक्ट गैसियस एक्सचेंज। सो द टाइप 2 cells of alveoli, it has something called lecithin, it secretes something called recithin which itself act as a surfactant, ताकि ये जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन मतलब से कोई गैस है उसको इकट्ठे रखने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सरफेस टेंशन। अब उसको अलग होना पड़ेगा अगर गैसियस एक्सचेंज होगा तो। So there is something called lecithin which is a surfactant, that is it reduces the surface tension so that gas can scatter or diffuse. So ये था हमारे diffusion membrane के बारे में। The first part is the simple squamous epithelium of alveoli, second basement substance and lastly the simple squamous epithelium of blood vessel. Now ये जो basement substance मैंने लिखा है ये तीन चीज़ों से बना है। फर्स्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज दी जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है दिस पार्ट इज द एल्वियोलर बेसमेंट सब्सटेंस। फर्स्ट पार्ट इट इज द एल्वियोलर बेसमेंट सब्सटेंस। द लास्ट वन हियर, ये जो ब्लड कैपिलरीज के पास है ये है कैपिलरीज का बेसमेंट सब्सटेंस। और उन दोनों के बीच में दिस इज द इंटरस्टिशियल और सिंपली यू कैन राइट द बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन एल्वियोलर एंड कैपिलरीज बेसमेंट सब्सटेंस। इन तीनों को मिला के एनसीईआरटी ने एक साथ नाम दिया है बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक, नाउ व्हाट इज बेसमेंट सब्सटेंस? इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अक्रॉस दिस लेयर। सिमिलरली हियर यू कैन ऑल्सो शो कि यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। नाउ इफ देयर इज CO2 दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ CO2। आई होप द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। अभी तक हमने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट देयर इज एल्वियोलाई, उसके बाद बेसमेंट सब्सटेंस, उसके बाद ब्लड वेसल्स। एल्वियोलाई का एपिथेलियम दो तरह के सेल से मेनली वी विल कंसीडर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टाइप 1 वाले सेल्स, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सेकेंड वाला क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस। यहाँ पे दीज आर नॉट सेल्स, दिस इज अ फ्लूइड फील्ड एरिया दैट फैसिलिटेट्स और हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। द थर्ड पार्ट इज ब्लड वेसल्स का जो एंडोथेलियम है दैट इज द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। Now we will see a concept called concept of partial pressure. अब what actually partial pressure is? जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें काफ़ी सारे गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज वी कैन से बाय डेफिनेशन दैट एटमॉस्फेयर जो होता है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर कहीं पे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसेस हो उस पर इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालना अलग चीज़ होता है और टोटल जो सारे गैसेस का कंबाइंड प्रेशर है वो अलग है। सो इफ वी से फर्स्ट व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम एक ऐसा टर्म लिखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, नो हियर वी मीन सारे गैसेस का कंबाइंड प्रेशर कितना है एंड दिस वी नो इज 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इस प्रेशर में क्या मैंने कोई इंडिविजुअल गैस को कंसिडर किया है? नहीं, वी हैव combined every gases, that is all the gases combined gives this pressure। अब मैं कहता हूं कि यहां से ऑक्सीजन का प्रेशर निकालना है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 760 है इस पे ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है वो मुझे निकालना है सेपरेटली। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है वो मुझे निकालना है सेपरेटली। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टोटल जो होता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इंडिविजुअल प्रेशर निकाल लें एटमॉस्फेयर से कोई भी गैस का, इसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आपको पता हो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 0.04%। ये है कंसंट्रेशन जो हमने
शायद क्लास 2-3 में हमारे जो किताबें हैं उनमें पढ़े होंगे. सो from this basic environmental science education, we at least know that atmosphere is a complex mixture of gases where nitrogen था 78.03% के आसपास, oxygen is around 21%, CO2 is around 0.03 to 0.04%. अब टोटल एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर 760 है तो इसमें 21% किसका है? ऑक्सीजन का प्रेशर. So if we go like this, we will get 21/100 into 760. This will give you somewhere around 159. This is the PO2. और NCERT ने कहा है कि you have to remember this data. Second, PCO2 is 0.04% of 760, which comes out around PCO2 will be 0.30 approximately. और एनसीईआरटी ने कहा है यू हैव टू रिमेंबर दिस डाटा एज वेल. सो अभी अगर हम देखें, वी हैव टू रिमेंबर दिस टू डेटा, दैट इज द PO2 इज 159 एंड PCO2 इज 0.3. सो अगर अब हमें क्वेश्चन ऐसा पूछे कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेयर इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो दिस डेटा इज कंबाइंड. ये जो डेटा है ये कंबाइंड डेटा है फॉर ऑल गैसेस. इस पे अगर 21% ऑक्सीजन है तो 21% ऑफ 760 विल गिव मी दिस डेटा. नाउ इफ आई सी ए क्वेश्चन अप हियर, इफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स टू 19%, मतलब दिस इज ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. अगर ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल घट जाए टू अप टू 19%, व्हाट विल बी इट्स पार्शियल प्रेशर कंसिडरिंग ऑल अदर पैरामीटर्स रिमेन कंस्टेंट. नाउ if it is 19%, we will simply go 19/100 into 760. Now if I calculate it, this turns out to be 19 into 76 will come around 144. Let's check it once. 76 into 19. This comes out to be 144. So in this case the answer will be 144. पर जब भी हम यहाँ पे what can actually go wrong in this question? See, if we say what is the partial pressure of oxygen in atmosphere, मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं कि वी डोंट रीड द क्वेश्चन एज सच, हम सीधा मार्क कर देते हैं 159. हियर इन स्पेसिफिकली दिस केस, इफ दिस परसेंटेज इज डिफरेंट द आंसर विल ऑल्सो बी डिफरेंट. एनसीईआरटी ने जो स्टैंडर्ड डेटा दिया है 159 या फिर 0.3, ये कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स. बट इफ ए हाइपोथेटिकल केस इज गिवन, वी कैन मेक फ्रेम द क्वेश्चन लाइक दिस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, the exchange of gas. This is the diagram of NCERT. You will find it in page number 187 of new NCERT textbook. So here अगर हम देखें, first कुछ partial pressure के डेटा हमें दिया हुआ है. The first data that is given is about the atmospheric, that is 159 0.3. अगर gaseous exchange होता है, one thing we need to know, कोई भी गैस हो, it will flow from its higher partial pressure to its lower partial pressure by simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कोई भी गैस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करता है. एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम इट्स हायर पार्शियल प्रेशर टू इट्स लोअर पार्शियल प्रेशर, एंड द सेम गोज ऑन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. सो इफ वी सी एटमॉस्फेयर में जो डेटा दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है 159, एल्वियोलाई के अंदर है 104. दैट इज ऑक्सीजन विल फ्लो फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई, एंड वी नो दिस इवेंट इज कॉल्ड इनहेलेशन. इस इवेंट को क्या कहा जाता है? इनहेलेशन. अब एल्वियोलाई के अंदर 104 और आर्टरीज के अंदर 95, दैट इज दिस गैस विल फ्लो अप राइट हियर इन दिस डायरेक्शन. उसके बाद जो टिश्यू है, बॉडी टिश्यूज के अंदर दिया हुआ है, दिस इज PO2 एंड दिस इज PCO2.
that is PO2 is 40. Now if there is 95 and here it is 40, it will flow from here to here. Now the question arises कि what actually happens कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कम है in tissues and in vein. If you see, the partial pressure of oxygen is less than carbon dioxide. Now what it actually means, say यहाँ पे गया है oxygen in the body tissues. This is the oxygen in the body tissues. टिश्यूज के पास पहले से था ग्लूकोज जो कि आया ब्लड के थ्रू. आपने पढ़ा होगा इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन क्लास 10 में. बाय एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज आ गया है ग्लूकोज और बाय रेस्पायरेशन एंटर किया है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज नाउ ट्रांसपोर्टेड इनटू द टिश्यू. अब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इनका मेन पर्पस क्या था? टू गिव एनर्जी. देयर मेन पर्पस वाज टू गिव एनर्जी. और जब वो एनर्जी देते हैं उसके साथ दे ऑल्सो प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड goes to the veins and see this same pressure continues here as well. Now यहाँ से होके कार्बन डाइऑक्साइड moves into the heart and from heart it again goes up to here. अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था प्रेशर? बट देख ले 45. यहाँ पे द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर was 45, partial pressure of CO2, but in alveoli it is 40. अब gases will flow from its higher partial pressure to its lower partial pressure. So clearly the carbon dioxide moves from 45 to 40. अब यहाँ पे है 40, outside it is 0.3. So now this will move outside towards 0.3 area and we know this event is called exhalation. That is ये जो entire chart है we can explain it by high to low pressure. ठीक, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, वापस देखेंगे इस डायग्राम को. फर्स्ट एटमॉस्फेयर में था 159 0.3, ये था एटमॉस्फेयर में. और हमारा जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में था 104 और 40. अभी देखते हैं कि कितना ये डेटा हमको याद है. गैस विल फ्लो फ्रॉम 159 टू 104 फ्रॉम हाई टू लो. किसका फ्लो हुआ? ऑक्सीजन का. एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड इनहेलेशन. अब सिस्टमिक आर्टरीज पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि इट इज अराउंड 95-40. अब सिंस दिस इज 95 एंड 40, अब यहाँ पे कितना था? 104. गैस विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर. बीच में व्हाट विल बी प्रेजेंट? हार्ट, जिसने इस ब्लड को पंप किया. टिश्यूज के अंदर 40-45 इन दी टिश्यूज. रीजन हमें पता है कि टिश्यूज अंडर गो थ्रू सेलुलर रेस्पायरेशन प्रोसेस. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स एनर्जी प्लस CO2. नाउ यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इट इज़ 95 एंड यहाँ पे इट इज़ 40. ये यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो करेगा ऑक्सीजन टू टिश्यूज. अब टिश्यूज के बाद द ब्लड विल फ्लो इनटू द वेन्स, जहाँ पे द नंबर्स वेर 40-45. These are the two areas जहाँ पे सी टिश्यूज पे PO2 is less than PCO2. This is another area where PO2 is less than PCO2. Now जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ that will move towards the vein or move into the vein. अब यहाँ पे है 40-45, it will go back into the heart. This will move back into the heart. It came with 40-45. Now this 45 here and there is 40 here. So now we will move from 45 to 40 through pulmonary artery, and from here it will move out towards from 40 to 0.3. This from here from 45 to 40 means from heart to alveoli. From 40 to 0.3 means from alveoli back to atmosphere. अगर हमको ये डेटा याद हो गया अभी, लेट्स चेक वंस कि ये टेबल हम फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं. फर्स्ट एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कितना था? 159, CO2 0.3, एल्वियोलाई में 104 और 40.
उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरीज का जो ब्लड है वुड बी 95-40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहा जाता है? जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, डीऑक्सीजनेटेड मतलब PCO2 इज मोर देन PO2। कितना था यहाँ पे? 40 और 45, एंड द सेम गोज ऑन फॉर टिश्यूज 40 एंड 45। ऑल्दो हियर स्लाइट डिफरेंसेस आर प्रेजेंट, बट एनसीईआरटी ने यही डेटा दिया है। So I hope the exchange of gases table part is done. We will move into the next part, that is the transport of gases. अब यहाँ पे हमको दो gases के transport के बारे में जानना होता है, that is transport of oxygen and transport of carbon dioxide. If you have seen first and second lecture, you know oxygen का transport will be in this direction और carbon dioxide will be produced here and इसका transport होगा in this direction. अभी भी हमने देखा ये exchange of gases में. So say alveoli में the partial pressure was 104 and 40, और अगर ये आर्टरी है the partial pressures are 95 and 40. So clearly there will be exchange of gas जो कि हमने अभी भरा from 104 towards 95. This exchange of gas will be from 104 to 95 because gas flow from its higher partial pressure to its lower partial pressure. नाउ ये जो ऑक्सीजन है दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। ब्लड में ये जो ऑक्सीजन है इसके इफ यू सी दिस ऑक्सीजन इट इज एंटर्ड ब्लड, ये दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। 3% ऑफ ऑक्सीजन रहता है इन प्लाज्मा। ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा और जो ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। 3% ऑफ ऑक्सीजन स्टेज इन प्लाज्मा। नाउ क्योंकि ये प्लाज्मा में आ गया, इसको कहा जाता है दिस 3% इज कॉल्ड डिसॉल्व्ड स्टेट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड डिसॉल्व्ड स्टेट? बिकॉज प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट। एनसीईआरटी ने यहाँ पे टर्म यूज किया है डिसॉल्व्ड स्टेट। दिस 3% ऑक्सीजन स्टेज इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा बिकॉज प्लाज्मा इटसेल्फ हैज 90 to 92% वाटर, और रिमेनिंग जो 97% है ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन के साथ लगा हुआ होता है। रिमेनिंग 97% इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड है इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हियर वी विल राइट देयर इज ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन ही लिखना है। इफ़ यू राइट इट एज ऑक्सीडेशन, आपने थोड़ा सा खुद का दिमाग अगर लगा दिया यहाँ पे कि ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का ऐड होना कोई भी मॉलिक्यूल में इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, देन यू आर रॉन्ग। दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन, दिस शुड बी कॉल्ड एज ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्योंकि जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन डू नॉट चेंज, Fe+2 रिमेन्स Fe+2। दिस इज अ टेम्पोररी एसोसिएशन, क्योंकि बाद में जाके टिश्यूज़ में उसको डिसोसिएट भी होना है। देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसका मेन पर्पस हीमोग्लोबिन के साथ रहना नहीं है, उसका मेन पर्पस है कि हीमोग्लोबिन इज ए कैरियर। अगर मैं अपने घर से निकला, मैंने बाइक लिया, यहाँ तक आया, तो मेरा मेन पर्पस वॉज नॉट टू राइड दिस बाइक, माई मेन पर्पस वॉज टू कम हियर। वैसे ही अगर ये ऑक्सीजन है, उसका मेन पर्पस ये नहीं है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ रहे। Hemoglobin is a carrier, it is a vehicle that transports this oxygen to this tissue. That means ये जो association है, this should not be very strong association. ये association should be a transient या फिर temporary association, ताकि जब ये tissues के पास पहुँचे तब this oxygen gets separated. तब ये जो oxygen है ये यहाँ से separate होके tissues के अंदर आ जाए। अब क्यों आएगा tissues में? अभी हमने पढ़ा। It will bind with glucose, it will give you एनर्जी। इस प्रोसेस का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, और इन रिटर्न ए बाई प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड जिसका नाम है CO2। नाउ दिस CO2 इज ट्रांसपोर्टेड हियर। अब यहाँ पे जो CO2 है, देखिए ऑक्सीजन के कितने रोड्स थे? ऑक्सीजन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड, 3% इन प्लाज्मा कॉल्ड डिसॉल्व्ड स्टेट, 97% बाउंड टू हीमोग्लोबिन कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन में देयर इज नॉट ऑक्सीडेशन, देयर इज ऑक्सीजनेशन। Since in hemoglobin molecule the oxidation state of iron remains same. अब जब ये यहाँ पे गया, सेलुलर रेस्पिरेशन टुक प्लेस,
एनर्जी प्रोडक्शन हो गया. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, सो इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द ब्लड. अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट इस डायरेक्शन में होगा. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ, जैसे कि ऑक्सीजन के दो पैरामीटर्स थे 3 और 97, यहाँ पे 3% था यहाँ पे इन प्लाज्मा, यहाँ पे 7% CO2 इज इन प्लाज्मा, 7% इज इन प्लाज्मा. और इसी को हम क्या कह देंगे, प्लाज्मा में है मतलब डिसॉल्व स्टेट. एंड इफ दिस थिंग इज इन प्लाज्मा, वी नो प्लाज्मा में होता है, तो यहाँ पे भी हमने ये टर्म यूज किया था, डिसॉल्व स्टेट. नाउ अप्रोक्सीमेटली 23%, यानी कि 20 to 25% के आसपास होता है एग्जैक्ट नंबर, अप्रोक्सीमेटली 23% इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, मतलब HbCO2 फॉर्म करेगा. जैसे कि यहाँ पे फॉर्म हुआ था HbO2, यहाँ पे फॉर्म होगा HbCO2. कितना? 23%. दिस HbCO2 थिंग इज कॉल्ड कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन. इसका नाम गलती से भी कार्बोक्सी नहीं कहना है, इसका नाम है कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन. वाई? देखिए यहाँ पे नाम का मतलब तो आज इस लेक्चर में शायद नहीं होगा. वाई दिस इज कॉल्ड कार्ब एमिनो, एमिनो मीन्स NH2 ग्रुप. अब दिस इज हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, वी विल सी. यहाँ पे तो NH2 ग्रुप एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे नाम में एमिनो ग्रुप कहाँ से आ गया, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर HbCO2 इज नॉट कार्बोक्सी, इट इज कॉल्ड कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन. नाउ मूविंग ऑन टू 23 and 7, remaining 70%. This 70% is also in plasma. This 70% is also in plasma. Now you will question कि प्लाज्मा में तो यहाँ पे भी था, तो हमने 77 क्यों नहीं लिख दिया. यहाँ पे जो प्लाज्मा में था, दिस वॉज इन डिजॉल्व स्टेट, मतलब प्लाज्मा में CO2 डिजॉल्व्ड है. यहाँ पे जो है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ HCO3 माइनस. हियर इफ यू सी, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ HCO3 माइनस, इन HCO3 फॉर्म, मतलब ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. वाई दिस बाइकार्बोनेट इज नेसेसरी? बिकॉज दिस बाइकार्बोनेट एक्ट्स एज बफर. अगर आपको नहीं पता व्हाट इज ए बफर, इट इज ए सब्सटेंस दैट मेंटेन्स द pH ऑफ ब्लड. मतलब हमारा जो ब्लड का pH है 7.3, या फिर यू कैन से प्रिसाइसली 7.35, इसको फिक्स्ड रखने के लिए, ताकि pH ना एसिडिक हो ना बेसिक हो और यहीं पे रहे, 7.35 ही रहे, इट इज़ मेंटेन्ड बाय बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. सिंपली इट मीन्स दिस बाइकार्बोनेट आयन, जिसका सोर्स था CO2, यही मेंटेन करता है ब्लड का pH. अगर टोटल प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आपको पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 70 + 7 दैट इज 77%. मेरा क्वेश्चन आप सुनिए, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए टोटल प्लाज्मा में कितना है, वी विल से 7% + 70% दैट इज 77%. प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में पूछा जाए 7%, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में पूछा जाए, द आंसर विल बी 70%. एंड रिमेनिंग 23% इज इन द फॉर्म ऑफ HbCO2. नाउ दिस CO2 इज ट्रांसपोर्टेड. अब यहाँ पे से दिस इज HbCO2. इसका जब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नाउ दिस CO2 विल हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर. अभी हमने पढ़ा, अगर यहाँ से HbCO2 है, मतलब ब्लड हैज मोर CO2, दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड. ऊपर में जो ब्लड मैंने ड्रॉ किया, दिस पार्ट वाज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल्दो होते हैं सेपरेट ब्लड वेसल में, दिस शुड बी आर्टरी, दिस शुड बी वेन. नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड, सिंस दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पैरामीटर क्या होगा इसका? इसके अगर मैं डेटा देख लूँ, इसका नंबर क्या था? इट वाज 40,45. Now this 45 is CO2 here, the partial pressure of CO2 here, and there it is 40. That means gas will from its higher partial pressure, carbon dioxide, to its lower partial pressure, to the alveoli. उसके बाद ये बाहर जाएगा. क्यों बाहर जाएगा? क्योंकि बाहर it was 159,0.3. आउटसाइड में कितना था? It was 159,0.3. So it will flow outside towards 0.3. और रिमेनिंग उसके बाद क्या होगा? जो 159 का मतलब ये जो 159 था, इट विल कम टुवर्ड्स 104. दिस इज इनहेलेशन एंड दिस इज एक्सेलेशन. दिस वाज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस.
फ्रॉम दिस स्लाइड व्हाट आई हैव टू नो इज जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के पैरामीटर्स है, प्लाज्मा में कितना है 3%, हीमोग्लोबिन में कितना है 97%, और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के जो पैरामीटर्स है, प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में 7%, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% एंड रिमेनिंग 23% SHbCO2 कॉल्ड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पार्ट इज हीमोग्लोबिन का जो एक मैंने स्कीमेटिक डायग्राम लिया एक दो लाइन सेंसिटिक एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट, हीमोग्लोबिन में जो ये हिम पार्ट है, हिम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग परफायरिन रिंग, इसका मतलब है आयरन कंटेनिंग, सिर्फ आयरन मत लिखना है इसको, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर रखा है दिस इज ए स्कीमेटिक डायग्राम विच इज मोर देन एनफ फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड समझने के लिए। हीमोग्लोबिन में जो हिम है इट मीन्स आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग, और यहाँ पे आयरन हैज +2 स्टेट। और यहाँ पे मैंने देखिए कहा था ये चीज़, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन बिकॉज जब ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ it do not change the oxidation state of iron, it remains in the +2 form only. First misconception, हीमोग्लोबिन में हिम का मतलब is not iron, हीमोग्लोबिन में हिम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग। और ये जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, दिस ग्लोबिन पार्ट इज द प्रोटीन पार्ट। और अगर आपने अभी तक बायोमोलिक्यूल किया है, हीमोग्लोबिन वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन, दैट इज इस पे दो अलग अलग चेन्स होते हैं, दो टाइप के चेन्स होते हैं, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन, यू कैन से दिस इज टाइप ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन। क्यों क्वाटरनरी है, वाई दिस इज क्वाटरनरी, बिकॉज वी कैन से दो चेन्स यहाँ पे अल्फा चेन है, से दिस टू आर अल्फा चेन्स, से दिस टू आर बीटा चेन्स। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन को हम ये भी कहते हैं कि दिस हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा 2 बीटा 2 मॉलिक्यूल। और क्योंकि दो तरह के चेन्स है अल्फा और बीटा, टू टाइप्स ऑफ चेन्स, वी कॉल इट ए क्वाटरनरी प्रोटीन। अब इफ यू सी इट क्लियरली, मैंने जो दो अल्फा चेन्स बनाए इनमें इसका जो लेंथ है और जो बीटा चेन्स बनाए इनका जो लेंथ है इट इज डिफरेंट। यू कैन क्लियरली सी मैंने अल्फा चेन थोड़ा सा छोटा बनाया, बीटा चेन थोड़ा सा बड़ा बनाया। वाई रीजन इज अल्फा चेन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि ये प्रोटीन का चेन है, सेम गोज फॉर बीटा चेन। इन अल्फा चेन देयर आर 141 अमाइनो एसिड्स, और जो बीटा चेन है देयर इज 146, देयर आर 146 अमाइनो एसिड्स। So this number 141 and 146 is the number for each. Alpha 2 beta 2 means 141 into 2 plus 146 into 2. These are the total number of amino acids in hemoglobin. 141 plus 141 plus 146 plus 146. अगर पूछे number of amino acids in each alpha chain, it would be 141. Number of amino acids in each beta chain would be 146. ठीक? Now remember one thing. हीमोग्लोबिन के साथ मैंने यहाँ पे बोला जब ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है, दिस इज ऑक्सीजनेशन नॉट ऑक्सीडेशन, ये जो बाइंडिंग होगा, अब इफ द क्वेश्चन आस्क्स दिस इज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हिम पार्ट पे बाइंड करेगा या फिर ग्लोबिन पार्ट पे? इज माई क्वेश्चन क्लियर? सी, इफ दिस इज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, विल इट बाइंड टू हिम और विल इट बाइंड टू ग्लोबिन? योर आंसर विल बी हिम। दैट इज दिस Fe+2 इसके साथ आयरन बाइंड करेगा, नॉट विद द ग्लोबिन पार्ट। व्हेन वी विल स्टडी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, वी विल सी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट बाइंड्स विद द ग्लोबिन पार्ट, और ये जो ऑक्सीजन है इट बाइंड्स विद द हिम पार्ट। नाउ इफ ऑक्सीजन बाइंड्स, सी हिम पार्ट हैज 4 Fe+2, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बाइंड हियर वुड बी 4, दिस वुड बी द मैक्सिमम नंबर। नाउ इफ वन हीमोग्लोबिन, इसके मतलब इस मॉलिक्यूल में देखिए व्हाट आर द स्टेट्स, इफ दिस एंटायर मॉलिक्यूल हैज ओनली वन ऑक्सीजन हियर, और बाकी जगह में से अभी तक ऑक्सीजन बाइंड नहीं की यहाँ पे, इफ देयर इज ओनली वन ऑक्सीजन, कैन वी से दैट आउट ऑफ दिस 4 ओनली वन हैज ऑक्सीजन, मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज 25% सैचुरेटेड। अभी अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गया, कैन वी से इट इज 50% सैचुरेटेड। Now if there are 3 oxygen, can we say it is 75% saturated?
and if all four are occupied by oxygen, it is 100% saturated. Means if the fifth oxygen molecule comes, it cannot bind, because अगर 4 ऑक्सीजन ने बाइंड कर लिया, it is 100% saturated. Now let me show you another way. से अभी यहाँ पे there were 4 oxygen molecules. Now means it is 100% saturated. अभी अगर मैंने यहाँ से एक ऑक्सीजन को हटा दिया, 1 ऑक्सीजन मूव्ड अवे, मतलब ये जो ऑक्सीजन था इट लेफ्ट दिस मॉलिक्यूल. कैन वी से लेफ्ट मतलब कब होगा? यहाँ से, जब यहाँ से मतलब से फ्रॉम हियर जब एक ऑक्सीजन जाएगा, से हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को लिया, ये ऑक्सीजन को कभी ना कभी छोड़ेगा भी. जब ये छोड़ेगा, अगर इसने एक को छोड़ा, देन हाउ मेनी ऑक्सीजन इज प्रेजेंट? 75, मतलब 75%. 4 में से एक ऑक्सीजन it left, it dissociated. So we can say saturation is 75% and dissociation is 25%. Dissociation मतलब कितना उसने छोड़ दिया यहाँ पे towards tissue. In this case we can say saturation is 75%, means dissociation would be 25%. Now अगर इसने दूसरा वाला भी छोड़ दिया, now saturation is 50%, मतलब 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है. 2 छोड़ दिया मतलब dissociation should be 50%. नेक्स्ट इसने तीसरा भी छोड़ दिया, नाउ सैचुरेशन इज 25, मतलब डिसोसिएशन इज 75. आई होप दिस कंसेप्ट्स आर क्लियर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ मैक्सिमम हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स? एक हीमोग्लोबिन इट कैन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. नाउ 100 ml blood means it should have 15 ग्राम हीमोग्लोबिन. अलग अलग डाटा है, दोनों दिस आर डिफरेंट. अगर आपने कभी नॉर्मल हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया है, आपने सुना है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इज 15, 13, 14, 15, these are the ranges. More than 17 is unhealthy, less than 11 or 12 in case of female and male is considered unhealthy. So 100 ml ब्लड में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल है, दिस इज 15 ग्राम. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है? नाउ सी, अब अभी आप यहाँ पे 4 मत लिख देना, 4 तो नंबर था. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन थे, और यहाँ पे मैंने पूछा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने ml ऑक्सीजन होगा? दैट वुड बी अराउंड 1.34 ml. You have to remember this data. This is in our syllabus. 1 gram hemoglobin has 1.34 ml oxygen. Now if I combine both of these data, see what I get. 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में है 1.34 ml ऑक्सीजन. अभी अगर हम पूछे 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, अब क्या लिखोगे? दिस शुड बी अराउंड 100 ml मतलब 15 ग्राम, 1 ग्राम में 1.34 मतलब 15 इंटू 1.34. दिस शुड बी अराउंड 15 इंटू 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, which is around 20 ml ऑक्सीजन. 20.1 के आसपास आएगा. We can say it is around 20 ml. मतलब 100 ml ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड. 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इज इट विजिबल? यस. 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 20 ml ऑक्सीजन. इज दिस डेटा क्लियर? मैं यहां पे लिख देता हूं 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन. और हाउ वी डिड इट? हमने मल्टीप्लाई किया है 15 इंटू 1.34. वाई? क्योंकि 100 में 15 क्या है? हीमोग्लोबिन, और 1.34 ml क्या है? ऑक्सीजन. 100 मतलब 100 में से जो 15 है वो मैंने क्या लिया? 15 ग्राम लिया. 15 ग्राम दैट इज हीमोग्लोबिन, और 1.34 ml दिस इज व्हाट? ऑक्सीजन. इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया. द आंसर शुड बी अराउंड 20.1. वी कैन टेक ए स्टैंडर्ड 20 ml. इज इट क्लियर? नाउ इफ दिस इज 20 ml in 100 ml oxygenated blood, in normal condition
इन नॉर्मल कंडीशन इस 20 ml में से दिस 20 आउट ऑफ दिस 20 ml ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस 20 ml ऑक्सीजन जो मैंने कहा किस में प्रेजेंट है? 100 ml ब्लड में. 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 20 ml ऑक्सीजन. आउट ऑफ दिस 20 ml ये सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टू द टिश्यूज. समझ में नहीं आया? एक बार पिछला वाला स्लाइड देखो. दिस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन. अगर 100 ml ब्लड मैंने यहाँ पे लिया, इट मीन्स देयर विल बी 20 ml ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम हियर टू टिश्यूज. 20 ml ऑक्सीजन में से ये टिश्यूज के पास कितना ऑक्सीजन भेजेगा? नॉर्मली 5 ml. मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि जितना हमने ऑक्सीजन लिया पूरा टिश्यूज को दे दिया जाता है, नहीं. आप एक चीज़ सोच के देखो, ड्यूरिंग एक्सरसाइज तब तो और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा. अगर नॉर्मली हम पूरा ऑक्सीजन दे दे, एक्सरसाइज के वक्त जब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो तो होगा ही नहीं. दैट मीन्स जो ऑक्सीजन रहता है उसका पूरा हम डिलीवर नहीं करते. 20 ml में से हमने सिर्फ कितना डिलीवर किया है? यहाँ पे 5 ml. मतलब अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 20 ml मतलब 5 ml करके अगर आप एक ऑक्सीजन को पकड़ो यहाँ पे, उसमें से सिर्फ हमने एक को डिलीवर किया, से 4 मिलके है 20 ml. बस समझाने के लिए एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं. बस 4 ऑक्सीजन मिलके से इट इज़ 20 ml. उसमें उसने सिर्फ 5 ml भेजा, मतलब एक ऑक्सीजन को भेजा. अगर एक ऑक्सीजन को भेजा मतलब 3 प्रेजेंट है. 3 प्रेजेंट है मतलब 75% सैचुरेटेड और 25% डिसोसिएटेड. मतलब यहाँ से 20 ml से जब 5 ml वो ऑक्सीजन को डिलीवर भी कर देगा, वो भी कितना डिलीवर करेगा? सिर्फ 25% डिलीवर करेगा, बाकी 75% खुद के पास रखेगा. वाई? क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ ले, ये तो नॉर्मल केस है. इफ द सेम क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपसे पूछ तो नहीं सकता, पर आप खुद अपने घर से बैठ के एक आंसर दीजिए. इफ देयर इज 100 ml ब्लड which has 20 ml ऑक्सीजन, खुद सोच के आंसर देना. यहां पे है टिश्यूज. अगर हमने एक्सरसाइज किया है तो क्या टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए या कम ऑक्सीजन चाहिए? इफ देयर इज एक्सरसाइज, टिश्यू का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज के वक्त ज्यादा होता है या कम होता है? डेफिनेटली इट इज मोर. इसीलिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इज अराउंड 15 ml. अब वही शॉर्टकट मैंने जो आपको सिखाया वही सोचिए एक बार. 20 में से 5 गया मतलब 4 में से 1 गया. इट वॉज 75% सैचुरेटेड, 25% डिसोसिएटेड. अभी 20 में से मैंने 15 डिलीवर कर दिया, मतलब 5 ml करके हमने बोल रहा था. ये एक शॉर्टकट था, आप इससे याद कर सकते हैं. 20 में से मैंने कितना भेज दिया? 15. मतलब 4 में से मैंने 3 तो भेज ही दिए. मतलब यहाँ पे इट इज 75% डिसोसिएशन, ओनली 25% सैचुरेशन. 4 में से मैंने 3 भेज दिए तो खुद के पास कितना रहा? एक मतलब 25% सैचुरेशन, और 3 मैंने छोड़ दिया मतलब 75% डिसोसिएशन. अब यहाँ से क्वेश्चन दोनों को मिला के अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से सोचूं, दिस कैन बी ए क्वेश्चन. एक तो सिंपल क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमको बोला जाए, दीज आर 2 सेपरेट केसेस. अगर हमको बोला जाए कि नॉर्मल से एक्सरसाइज में टिश्यू का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है दिस इज हाई और लेस, इट शुड बी वेरी हाई. क्योंकि नॉर्मली इसका रिक्वायरमेंट कितना है? 5 ml, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज का कितना रिक्वायरमेंट होता है? 15 ml. अगर आपसे पूछा जाए ये कितना टाइम से ज़्यादा है, वी कैन से इट इज़ 3 times मोर. मतलब हमने इस लाइन का स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का जो मतलब है आप समझिए. नॉर्मली हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है और एक्सरसाइज के वक्त जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ये ज़्यादा है, हमको पता है. कितना टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए? आंसर वुड बी 3 times मोर. 3 times more oxygen is delivered to the tissues. 3 times more oxygen is delivered to the tissues compared to normal condition during exercise. एक्सरसाइज के वक्त टिश्यूज को
3 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए देन जो नॉर्मल इंसान को चाहिए ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. सो अगर ये वाला टॉपिक क्लियर है, लेट्स सी वेदर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट. ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन फर्स्ट वाला केस क्या था, लिख लेते हैं पहले, ऑप्शन बाद में देखेंगे. 100 ml ब्लड, उसमें 20 ml ऑक्सीजन, और उस 20 ml में से टिश्यू को दिया जाता है 5 ml. 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये वाला गिवन है. ट्रांसपोर्ट्स A ml ऑफ ऑक्सीजन, कितना ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा 20, while B ml ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू टिश्यू. टिश्यूज में कितना जाता है 5. आंसर शुड बी A. कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? 100 ml दिया हुआ है, 20 ml विल बी ट्रांसपोर्टेड, 5 ml विल बी डिलीवर्ड टू द टिश्यूज. मतलब ये कौन सा केस हुआ है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का केस. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. नाइदर ट्रेकिया नॉर ब्रोंकाई कंटेन, सी हायालिन कार्टिलेज दोनों में होता है, गॉबलेट सेल दोनों में होता है. मतलब हमारा जो गॉबलेट सेल का मतलब मैं बता देता हूँ, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी इन दिस चैप्टर. गॉबलेट सेल का मतलब होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो म्यूकस इज प्रेजेंट विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल, जो हमारा रेस्पायरेटरी कंडक्टिंग जोन जो है, मतलब यू कैन स्किप टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, ये सब को छोड़ के जो हमारा अपर रेस्पायरेटरी पैसेज है, पूरा का पूरा कंडक्टिंग जोन, जिसमें देयर वाज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, वहाँ पे म्यूकस शुड बी प्रेजेंट which is a medium for transport of gas in this respiratory passage in the anatomy part. जो ये म्यूकस है, ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल का नाम होता है गॉबलेट सेल. फिर से एक बार बताता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर एपिथेलियम दैट इज द निजल चेम्बर पार्ट अप टू द रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल पार्ट या फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल पार्ट. बिफोर दिस पार्ट इज द कंडक्टिंग जोन, दैट इज अप टू द इनिशियल पार्ट वी कैन से इज द कंडक्टिंग जोन. अप टू दिस कंडक्टिंग जोन यू कैन से, up to this conducting zone mucus should be present which helps in transport of gases across this passage. that is जो हम जब inhalation करते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना, 4 फंक्शंस मैंने लिखाया था. ह्यूमिडिफाई करना, brings air to alveoli, ये जो जितने भी फंक्शंस है, brings air to body temperature, cleans dust particle, ये जितने भी फंक्शंस है, for this mucus is needed. now these goblet cells are actually mucus secreting cells. अब mucus क्योंकि प्रेजेंट है मतलब गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होगा. These are mucus secreting cells. In the entire conducting zone this is present. क्वेश्चन में पूछा गया ट्रैकिया में भी नहीं पाया जाता, ब्रोंकाई में भी नाइदर नॉर लिखा हुआ है इस पे. द आंसर शुड बी सिंपल स्क्वामस. हमको पता है दिस इज फाउंड इन एल्वियोलाई. ये जो सिंपल स्क्वामस है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज फाउंड इन एल्वियोलाई. द आंसर शुड बी एल्वियोलाई. सो आई होप दिस वाज very helpful in understanding the topic exchange of gases part, and just a brief introduction हमने अभी किया है regarding the transport of gas. In the Thursday's lecture you will get a complete idea regarding the transport of oxygen, a complete idea regarding the transport of carbon dioxide, और उसके बाद जो 5th lecture आएगा उस पे we will cover regulation part and disorders part. Until then I hope you have understood this part. Read NCERT clearly, try to solve these questions, and whatever book you have, try to solve questions from that book topic wise part. Once the chapter is over, you go for the main exercise or PYQ. This lecture I think was very helpful. Until then, we will see you in the next lecture on the lecture 4 of breathing and exchange of gas. Till that, I am Dr. Niladri Dev signing off.